Yes, a very good morning to all of you. Let us start with today's lecture. Yesterday we were discussing graph of the equation. Yes. Get ready with your books. Girls, please keep quiet now. So when we are talking about graph of an equation, firstly, suppose we are having certain points, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. And I told you to plot these points on graph. You will plot this point on a graph and we'll get a picture or we'll get a geometrical presentation, right? That means to draw a graph, we need points. Either I give you point, right? You will draw the graph. And if I'm not giving you the points and I told you to draw the graph of this equation, what you will do? You will develop the points. आप points बनाओगे और फिर graph draw करोगे. Now, how to make the points to draw the graph? We'll make a table. And in the table, we'll find the different points to be plotted. How to find the points? You take the value of x and you'll get the corresponding value of y. Suppose I am taking x to be 0, then y will be 4. And if I am taking y to be 0, then x is 4. X is 1, y is 3, x is 2, y is 2. So, ये हमारे पास points आ गए to plot it on the graph. So, let us plot these points on the graph. The maximum points are up to 4. Maximum points are up to 4. Now see, when we are plotting the points, we know we start with the x coordinate. X coordinate is 0, starting with 0 and up to 4. That means this will be 0, 4. Then 4, 0, x is 4, y is 0, that is 4, 0. Then 1, 3, that means starting with 1, going to 3, 1, 3. 2, 2, that means this 2 and 2. So after drawing the graph of this equation, we observe that graph of linear equation in two variables, it is a straight line. We'll always get a straight line as far as graph of linear equation in two variables is concerned. And 2-3 observation about this graph. Let us make those observations. You see that when I'm making this table, in actual what I did, I just have find out the solution of the equation. 0, 4, solution of the equation, 4, 0 is the solution of the equation, 1, 3 is the solution of the equation, even 2, 2 is the solution of the equation. Indirectly, we are finding out the solutions of the equation. So, what this graph represents? This graph is the collection of the solution of the equation. That means every solution of the equation, it lies on the graph of the equation. इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन होगा वो उसके ग्राफ पे lie करेगा, right? Every solution of an equation, it lies on the graph of the equation. Generally ग्राफ में हम नहीं बताते, जब प्रॉब्लम्स हम आते हैं then we have to. ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, every solution of an equation, it lies on the graph of the equation. And the point vice versa, the point which lies on the graph of the equation will be the solution of the equation, right? Sometimes the graph is given to you and just it is told that find from the graph, write the points which will be the solution of the equation. तो ग्राफ से अगर आपने सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जज करना है तो सीधा जो जो पॉइंट ग्राफ पे लाई कर रहे हैं कौन कौन से 0, 4, दैट मींस 0, 4 विल बी इट्स सॉल्यूशन, 1, 3, 1, 3 विल बी इट्स सॉल्यूशन, 2, 2 and 0, 4, these will be the solution of the equation. So while drawing graph, two observation you keep in mind that every solution of the graph of an equation, it lies on the graph and vice versa. If a point lies on the graph, then that will be the solution of the equation. Am I clear? Let us start with exercise 4.3. Second question I am doing. Question number 2. Let us read out the statement. Give
the equations of two lines, give the equations of two lines which are passing through 214 and how many such lines can we draw. 214 से पास करती हुई हमने लाइंस की इक्वेशन लिखनी है and we have to tell that, हाँ जी दिलप्रीत, what's going on there? Keep your bag down. Where is your book? Write the equation of the line which passing through 214, right? You know, whenever we have to write equation, three things are required. We need to have sign of equality, right? We need to have left hand side and we need to have right hand side. When these three requirements will be fulfilled, only then the equation will be formed. हमें तीन चीजें चाहिए, left hand side, right hand side और equality का sign. Now, how to generate left hand side, how to generate right hand side, let us see. Left hand side will be generated randomly. Randomly means any expression in x and y you can take. Rahul, you speak any expression in x and y. X, any expression in terms of x and y. 1 comma, उसमें x और y तो आ ही नहीं रहे. ये तो आपने एक्सप्रेशन मुझे ऐसा बताया जो x और y के बिना है. I need an algebraic expression which is containing x as well as y. 2x plus. So Rahul is saying 2x plus y. चलो मैं इसको left hand side मान लेती हूँ. You tell, last bench, Keshav, Ricky, any expression in x and y? Any of your choice. x plus 2y. इतना क्यों घबरा रहे हो? एनी, अगर पेपर में आ जाए, डू एनी 30 क्वेश्चन ऑफ योर ओन चॉइस, फिर भी घबरा जाओगे, है ना? नहीं ना, फिर तो बड़े हम एक्साइटेड होके करेंगे. 30 क्वेश्चन ऑफ माय ओन चॉइस, इट मींस मैं एक डिग्री में ये थ्योरम कर दूं, एक मैं ये कर दूं, एक मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट लगे. तो फिर अगर मैंने एक्सप्रेशन अपनी तरफ से बोलने के लिए बोल दिया तो फिर क्यों? आप तो ऐसे घबरा गए जैसे मैंने कहा कि माउंटेन पे चढ़ना है आपने. x plus 2y. हाँ जी कनिष्का, यू टोल्ड 3x plus 2y. इसी तरह से एवरी स्टूडेंट विल बी हैविंग द एक्सप्रेशन ऑफ हिज और ओन चॉइस. कितने एक्सप्रेशन हम एक्स वाई में बना सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑपरेशंस भी चेंज हो सकते हैं. कोई बच्चा यहाँ पे माइनस लगा दे तो एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना? तो एक्सप्रेशन विल गेट चेंज. तो इस तरह से हमने इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को जनरेट किया बाय टेकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ आवर ओन चॉइस, क्योंकि जनरल फॉर्म की बात ही नहीं की हुई. वो सी वेरिएबल कांस्टेंट से आ जाएगा. सी जो है ना वो कांस्टेंट ही होता है, तो वो भी आएगा राइट हैंड साइड से. हाँ लगा दो, कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ना. एनीथिंग यू कैन टेक, ठीक है? मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई लगाओगे तो डिग्री बढ़ जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी. 1 + 1, हमें क्या चाहिए? 1 डिग्री. सो प्लस और माइनस दोनों में से एक चीज चलेगी, ठीक है? तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमें जनरेट करनी आ गई. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड जनरेट करने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट 214. 214 पॉइंट का हमें हेल्प लेना है राइट हैंड साइड को जनरेट करने के लिए. कैसे लेंगे इसकी हेल्प? लेट अस सी. दिस इज द राइट हैंड साइड. इस राइट हैंड साइड को उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ. x को 2 और y को 14 पुट कर दो. 4 + 14 मिलके क्या बना? 18. ये बन गई आपकी राइट हैंड साइड. अब देखो हमने इसको जनरेट ही ऐसे किया है कि ये पॉइंट इसमें से पास करेगा. आप पुट करके देख लो. व्हेन यू विल पुट x = 2, y = 14, यू विल गेट डेफिनेटली गेट 18, क्योंकि हमने सेटिंग ही इस हिसाब से कर ली है कि हमारा एम जो है वो रियलाइज हो जाए, ठीक है? अब सेकंड है x + 2y. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, कितना बनेगा? 30. तो इन दिस वे, उसने 2 ही इक्वेशंस बोली थी, हमने लिख दी. इन दिस वे यू कैन फाइंड सो मेनी इक्वेशंस. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर सच इक्वेशंस आर देयर एंड व्हाई. ऐसी कितनी इक्वेशंस आप बना सकते हो? Infinite many equations can be made because we can have infinite many combinations of x and y, or we can have infinitely many such lines through which 214 can pass, right? Being this is the reason. Question number 3. Third question we are going to start with.
what he says that 0.34, it lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7. 0.34 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7. Then find the value of a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब कुछ बच्चे ये सोचने लग पड़ते हैं कि ये पॉइंट ग्राफ पे लाई करता है तो फटाफट से ग्राफ बना लो, है ना. ये पॉइंट ग्राफ पे लाई करता है तो फटाफट से ग्राफ बना लो, बस हो गया सोल्यूशन. अगर ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई करता है तो इसका मतलब है ये पॉइंट इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन. इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन देन डेफिनेटली इट विल बी द solution of the equation, and if it is a solution of the equation then it will definitely satisfies the equation. That means if we put y की value 4, x की value 3, both the sides will remain equal. सॉल्यूशन का मतलब सेटिस्फाई करने का यही मतलब होता है ना कि अगर हम वैल्यूज पुट करें हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या है, इक्वल. वी विल से एज दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन therefore it is the solution of the equation. Therefore by putting y is equal to 4 and x is equal to 3, the two sides they will remain equal. ठीक है, solution का मीनिंग हमने यूज कर लिया. This is 12, 3a plus 7, 7 goes on another side, 12 minus 7, 3a. So a comes out to be 5 by 3. Next, so calculations you know, but you should know the concept that if a point lies on the graph, then it will be the solution. And if it is the solution, it will satisfy the equation. Satisfy the equation means when we are putting x and y, the two sides will be yeah, equal to each other. Next question, question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8 and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. अब आगे तो आपको उसने गाइड किया हुआ है कि कैसे वेरिएबल्स लेने हैं, बट पेपर में मिस भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि सारा आपको हिंट देके ही आपके स्टेटमेंट आए. तो हम सिर्फ पहली 2 लाइन्स पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली विल डील विद दिस. व्हाट ही सेज, taxi fare in the city is as follows. For the first kilometer, fare is rupees 8 and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. First of all, as we are working in the linear equation in 2 variables, that means we need to see 2 things of this out of this question, जिससे हमें 2 वेरिएबल्स मिल सके. क्वेश्चन में 2 चीजों की बात हो रही है, एक तो डिस्टेंस, एक फेयर. टोटल मैंने अपनी तरफ से लगा लिया. तो सबसे पहले वी विल सी दैट व्हाट आर दोस 2 वेरिएबल्स व्हिच कैन मूव अस ऑन द पाथ ऑफ 2 वेरिएबल्स. सो वी हैव टेकन टोटल डिस्टेंस, लेट अस टेक इट टू बी x किलोमीटर, डिस्टेंस इज इन किलोमीटर्स, एंड वी आर गिवन टोटल फेयर, लेट अस टेक इट रुपीस. ठीक है, सबसे पहले तो वेरिएबल्स चूज करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझते हैं. ये है x किलोमीटर डिस्टेंस जो कि एक पर्सन ने कवर करना है, राइट. व्हाट ही सेज, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज रुपीस 8. फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर रुपीस 8. फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो हमको दिया हुआ है, हमने अपने आप सपोज नहीं किया. इट इज गिवन टू अस दैट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द पर्सन हैज टू पे रुपीस 8. अब अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर हमारा टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, बीच में से 1 किलोमीटर मैंने ट्रेवल कर लिया, सब्सिक्वेंट कितना रहा, 9. इफ द डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ट्रेवल सब्सिक्वेंट का मतलब रिमेनिंग. इफ द डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर एंड आई ट्रेवल 3 किलोमीटर, सब्सिक्वेंट 97. So if the distance is x kilometer, first kilometer is traveled, what will be the subsequent distance? X minus 1. So हम लिखेंगे subsequent distance x minus 1 kilometer.
जो बचा हुआ डिस्टेंस है, फर्स्ट किलोमीटर के डिस्टेंस के बारे में ही हैज टॉक्ड. व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज सबसीक्वेंट. एंड आउट ऑफ x, if 1 is deleted, 1 is diminished, how much will be left? x में से एक निकला, क्या बचा? x minus 1. बच्चे 7th में करते होते थे फॉर्म द इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, क्या? x minus 1. बनाया हुआ ना ऐसे एक्सप्रेशन, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x गिव यू x minus 1. अब जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है उस पर भी फेयर देना पड़ेगा, कोई अपना तो ऑटो है नहीं हमारा कि हम ये कोई पैसे ना लेगा हमसे, ठीक है ना, तो इस पे भी फेयर लगेगा. फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ के जो बाकी के किलोमीटर्स हैं उनके फेयर का हिसाब थोड़ा अलग है. कहता मैं फर्स्ट किलोमीटर का तो मैंने फिक्स कर दिया कि मैंने ₹8 ही लेना है, ठीक है ना. बाकी किलोमीटर्स के लिए आपको जो है ₹5 पर किलोमीटर देना पड़ेगा. अगर मुझे 9 किलोमीटर ट्रेवल करना है और हर एक किलोमीटर का ₹5 दे रही हूं मैं, तो टोटल कितने हुए? बच्चे आप क्या लाइफ स्किल्स सीख रहे हो? मैथ्स पढ़ते हो, किसी को मतलब ऑटो का भाड़ा देना नहीं हमें आ रहा है ना. मैं कह रही हूँ 9 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है, 5 पर किलोमीटर, कितनी मनी दोगे? दे करते हो रहा है ऐसे कि नहीं? सब्जी खरीदनी आती है? हद होगी बेटे. कुछ एक मिनट दिलप्रीत, 8 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ₹6 पर किलोमीटर है, टोटल कितना दोगे? 8 किलोमीटर इज ट्रेवलिंग इज ऑफ 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर रुपीज मतलब हमें फेयर देना है, तो टोटल कितना दोगे? ₹48. तो इसी तरह से वापिस आओ क्वेश्चन पे. यस, x minus 1 किलोमीटर है, x minus 1 किलोमीटर है, हर एक किलोमीटर का 5 है, तो सब्सिक्वेंट का फेयर कितना हो जाएगा? 5 into x minus 1 प्लस 5 into x minus 1. So फेयर for subsequent distance, फेयर for subsequent distance 5 into x minus रुपीज. बचे हुए किलोमीटर्स पे उसने इतने पैसे देने हैं और फर्स्ट किलोमीटर पे उसने ₹8 देने. इस तरह से करते कराते उसका जो सारा फेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा. चलिए अब आगे चलते हैं. अभी तक यू माइट हैव सीन दैट अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन किया कहीं पर भी y यूज नहीं हुआ. अभी तक हमने सब जगह x यूज किया. सब्सिक्वेंट डिस्टेंस x minus 1, सब्सिक्वेंट फेयर, फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस 5 into x. y has not been used yet. How to use y? Let us see. Total fare, this is equal to y. We have taken the total fare to be y. And how to write the total fare? अगर टोटल फेयर की बात करें तो कैसे आएगा? फर्स्ट किलोमीटर का फेयर प्लस सब्सिक्वेंट का फेयर. फर्स्ट किलोमीटर का 8, बाकी का 5 into x minus 1, तो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 5 into x minus 1, दैट इज इक्वल टू y. क्लियर? अब काफी हद तक हम इक्वेशन बनाने के करीब हैं. जस्ट टू सॉल्व इट बिकॉज वी गॉट द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इक्वलिटी साइन इज देयर, दैट मींस वी हैव फॉर्म्ड द इक्वेशन ऑलरेडी. जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, so we will be having 8 plus 5x minus 5 is equal to y. So we are having 5x plus 3 equal to y. This is the linear equation in two variables. ये बनी हमारी linear equation in two variable, where y is the क्या? Total fare and x is the total distance. Y represent the total fare and x represent the total distance. अब जब ये इक्वेशन आ गई तो आप किसी भी किलोमीटर के लिए फेयर निकाल सकते हो. अगर मैं कहती हूँ कि कोई पर्सन 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो कितनी मनी देगा? 53, 10 into 5, 50, 50 plus 3, 50. If a person is traveling 12 kilometer, 63. आप x की जगह डिस्टेंस को रिप्लेस करते जाओ, you will get y, that means the fare. Am I clear? Replace x and get the value of y. ठीक होगी बात? इसका ग्राफ बनाते हैं. चलिए, इक्वेशन हमारे पास आई
Graph means plotting the points. Plotting the points means getting the points. Getting the points means making the table. Let us make the table. अब आगे मैं आपको क्या कहती होती थी कि जब भी आपने कोई ग्राफ प्लॉट करना है तो आपने एक बार x को 0 और y को 0 जरूर लेना है, पर यहाँ पे नहीं हम लेंगे x 0, मतलब आपको डिस्टेंस ही ना ट्रेवल करो, आपको पैसे देने पड़े, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है ना भी। और दूसरा y को 0 कर दो, डिस्टेंस ट्रेवल करते जाओ और पैसे दो ना, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो ऑटो वाला ड्राइवर है उसके पास भी इतने पैसे नहीं कि आपको फ्री की सैर कराता रहे, ठीक है ना। इफ यू आर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस यू हैव टू गिव द मनी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 वाला केस निकल गया, हम x को 0 और y को 0 जो है वो नहीं लेंगे, हम एक ऐसे नंबर्स ले लेते हैं ताकि हमारा जो क्या कहते होते हैं स्केल है वो बना रहे। तो 1 से शुरू करते हैं। 1 किलोमीटर 8, 2 किलोमीटर 13, 3 किलोमीटर 18, 4 किलोमीटर, बस 4 वैल्यूज आर मोर देन इनफ। तो आप हाँ जी, जो जितनी बेटे 0 नहीं लेना, पर जितनी भी आप वैल्यूज लोगे उस हिसाब से आपको प्लॉट भी करनी है। ये ना यहाँ पे x को 100 ले लो और फिर उसकी वैल्यू आ जाए, फिर आपको स्केल लेना पड़ेगा, प्लॉट तो हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। नाउ द मिनिमम वैल्यू इज 8 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 23। लेट अस टेक द गैप ऑफ 2 यूनिट्स। ऐसे हमने वैल्यूज जो हैं वो y एक्सिस पे 2 2 का गैप लिया। केशव आपको समझ नहीं आ रहा, शायद आ रहा है? अच्छा, प्लीज wear your mask properly, your nose should be properly covered. दिलप्रीत सिंह, हाँ जी। Now along x axis just 4 values are to be taken, 1 2 3 and 4। इसमें क्यों, इसमें 1 1 का सारा एक जैसी वैल्यूज हैं तो फिर क्यों 2 2 का लेना। चलिए ग्राफ प्लॉट करने की तैयारी में हम, फर्स्ट पॉइंट इज 1 8 1 8 2 13, 12 के बाद 5 लाइंस काउंट करोगे यू विल गेट 13, then 3 18, then 4 23, you will get a straight line। अब आप पीछे पूछ रहे थे कि x plus y equal to 4 में स्केल, मैंने कहा था कि जहां पे हमारे पास प्रॉब्लम सम होती है वहां पे हमें करना होता है मोस्टली। यहाँ पे x एक्सिस का स्केल होगा 1 ब्लॉक इज इक्वल टू, दिस इज किलोमीटर्स डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस है 1 ब्लॉक इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, 1 किलोमीटर, एंड अलोंग y एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2 रुपीज, क्योंकि दिस इज फेयर इन रुपीज। एम आई क्लियर? चलिए भी 6th क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, 7th 8th अपने आप करना। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ रही है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, 3 एक्सरसाइज वर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। Suppose there is a point I am writing on the board, x is equal to 3. Someone told you represent it geometrically. तो आप क्या करोगे, you will make a line और आप कहोगे here this point A represent 3 on the number line। हमने यही सीखा था 8 तक, that how to represent a number on the number line। नंबर लाइन पे नंबर को हमने कैसे प्रेजेंट करना है, दिस वी हैव लर्न। अब ये तो हुआ कि जब हमने इस एक्सप्रेशन को 1 वेरिएबल में लिया। इफ आई टोल्ड यू दैट रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तब बात जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जहां पे 2 वेरिएबल्स आ गए वहां पे प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए होंगे, बोलो पॉइंट्स। जहां पे 2 वेरिएबल्स की बात वहां पे पॉइंट्स, जहां पे पॉइंट्स वहां पे टेबल, जहां पे टेबल वहां पे सॉल्यूशंस, वहां पे ग्राफ, ठीक है ना। और वही हमें आता नहीं होगा पेपर में, क्या आता होगा, आता होगा, होप सो।
क्या किससे देखना है, क्या क्या? अच्छा ठीक है, x इज इक्वल टू 3, डू योर बेस्ट, जो होगा देखा जाएगा। इतने कौन सा, x इज इक्वल टू 3। अगर टू वेरिएबल्स में ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको इक्वेशन में टू वेरिएबल्स दिखने चाहिए। सबको दो दिख रहे हैं वेरिएबल्स, एक ही दिख रहा है ना। अब हम दूसरे वेरिएबल को, दिलप्रीत जी, दूसरे वेरिएबल को इस तरह से लाएंगे कि वो आ भी जाए और फर्क भी ना पड़े। ठीक है, देखो कैसे, x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 3। जैसे बच्चे कहते हैं पेपर भी हो जाए, पढ़ना भी ना पड़े, है ना, वैसे आ भी जाए वेरिएबल y, आ भी जाए और कोई फर्क भी ना पड़े, तो कैसे आएगा, x प्लस 0 इंटू वाई। आगे दो वेरिएबल्स, जब दो वेरिएबल्स आ गए तो पॉइंट्स को हम चुटकियों में निकाल लेंगे, देखना। पॉइंट्स का मतलब होता है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू डालो और आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, x 0, 0 इंटू वाई 0, दोनों ही चले गए गायब, मतलब लाने के चक्कर में हमने गायब भी कर दिया। इसका मतलब हमें x की वैल्यूज डालनी नहीं है। हमेशा जिसको हम खुद लेके आते हैं उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, जो बाहर से बंदा आता है उसको इंपॉर्टेंस दी। घर वाले समोसे हमेशा एंड में खाते हैं, पहले गेस्ट को खिलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें, लिसन, y is our guest, so we have to treat that y like मतलब स्पेशल, ठीक है ना, स्पेशल पर्सन। तो आपको लिसन लेना है 0, x को नहीं लोगे, y को, y की वैल्यूज पुट कर दो, y को 0 पुट किया, x 3, मतलब y सब कुछ खाई जा रहा है, x बेचारा कोने से बैठा देखे जाएगा, देखना। y को वैल्यू, y को दूसरी डिश मिल गई है, y इज गेटिंग 1, x फिर बैठा हुआ, उसको बिठा दिया उसकी मम्मा ने कि तू आराम से बैठ जा, जब गेस्ट जाएंगे फिर खाइयो। कैसे, अब नहीं, वाई की जो डिशेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उसको मिल रही हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब। वाई की वैल्यू 2, x 3, वाई की वैल्यू 3, x 3। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट y is taking different values but x remains the same। x इतना मतलब सियाना बच्चा है कि उसको जो बोल दिया, जहां बोल दिया बैठने के लिए, आराम से बैठा हुआ, ठीक है ना। और y जो है वो चटम पटम करके सब खाई जा रहा है, ठीक है। चलो चलिए अब ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। क्वाइट बच्चे प्लीज। चलो अभी देखना हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट है 3,0, 3 0, x 3, y 0 है तो ऊपर जाना ही नहीं, पर जा ही नहीं सकते हम। नेक्स्ट इज 3 1, 3 1, ये 1 2 3 है ना। देन है 3 2, देन है 3 3। ये आई x इज इक्वल टू 3 जब हमने उसको कितने वेरिएबल्स में ड्रॉ किया, 2 वेरिएबल्स में। एंड यू माइट हैव सीन दैट दिस रिप्रेजेंट, आपको दिख ही रहा होगा, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ, line parallel to y axis. If someone is asking you, give an equation of a line which is parallel to y axis, तो आपको x is equal to कोई भी कांस्टेंट ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, यानी कि x वाली जो लाइन है वो हमेशा कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस के। रिवर्स ऑर्डर में सोचना है, इफ अ लाइन इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ x, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। अब एक चीज और देखना, अगर तो लिसन ये 3 पॉजिटिव था तो लाइन y एक्सिस के राइट साइड पे है, अगर 3 नेगेटिव होता तो ये किधर होती, लेफ्ट पे, उसी के पैरेलल होती, y एक्सिस की होती, बट साइड चेंज कर लेती, राइट की बजाय लेफ्ट हो जाती। आनी स्टेट ही हमेशा। सो
equation of a line which is parallel to y-axis will be equal to x is equal to some constant. वो constant कुछ भी हो सकता है, आप एक ही कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 2, 3, 5, 6, 7, anything. If the constant is positive, line is on the right side of y-axis, and if the constant is negative, line will be कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, जर्नल में नहीं आप पर्टिकुलर लिख सकते हो. So equation of a line which is parallel to y-axis will be x is equal to some constant. हमेशा याद रखना, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो राइट साइड, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड. यानी कि आज आपने ये भी देख लिया कि जो 3 हम कभी नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे वो एक लाइन भी है अगर 2 वेरिएबल्स में जाएं. किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के. अगर पॉजिटिव है तो कौन सी डायरेक्शन? राइट. नहीं, नीचे भी तो जानी ना लाइन. यस, अब देखना जरा एक चीज ध्यान से. अगर ये x इक्वल टू 0 हो जाए, 3 था ना, 3 x इक्वल टू 3 था, 2 होती तो यहां पे आ जाती लाइन, 1 होती तो लाइन यहां पे आती, 0 होती तो यही बन जाती. यानी कि x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y axis. Continue tomorrow. Get ready with your sheets and do a pairing your test.